Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Hyperland, and in this video, that is day 2 of this playlist OA assessments problem set, we are going to see a standard problem that is trapping rainwater. Okay, so हम इस वीडियो में ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं ट्रैपिंग रेन वाटर, और मे बी आपने इसके बहुत सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी देख रखे हो, ठीक है, या फिर सुना हो इसके बारे में दैट दिस बिकॉज दिस इज अ फेमस प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू डिस्कस easiest solution for this problem in this video. Okay, but before starting this video, let's just see what is Newton School. So as we all know that Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program they have for you is pay after placement program, under which they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer by training you for 6 months. And not only this, after that they will also get you placed in these companies like Google, ThoughtWorks, Zomato, Xiaomi, Byju's, Unacademy, Public Sapiens, etc. Okay, so what they do is they will make you a full stack developer, and after that they will get you placed in these companies for minimum 5 lakh CTC. Okay, so most amazing thing about their program is that they have pay after placement process. It means you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for minimum 5 lakh CTC. And you can see here also that application for full stack development course right now for October batch is open right now, so you can just come to their website and apply now for October batch. Second program they have for you is Launchpad Initiative. So if you want to start for free, or if you want to start from scratch absolutely for free, you can just come to here and log in or sign up for free and start learning. They have different courses for you, and which are especially designed by educators, and you can learn everything from it. After the completion of any course you can also get certification from it, and everything is here absolutely for free. So just come check their pay after placement program and Launchpad Initiative. At the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this YouTube channel, where we have different playlists for you for DP, for our recent playlist is OA problem set, and we have DP for JavaScript, we have for DSA, we have for C++. So and these playlists are regularly updated. Okay, so just go and subscribe this YouTube channel. Now let's just see what is our today's problem, that is trapping rainwater. Okay, काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, बट इसके बारे में आपने मे भी सुना हो, बट इसका एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं. बट बिफोर लेट्स जस्ट सी व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो ट्रैपिंग रेन वाटर एज द प्रॉब्लम सजेस्ट, इसके नाम से आप लोगों को कुछ इंट्यूशन आ रहा होगा दैट व्हाट इज ट्रैपिंग रेन वाटर. ठीक है, तो एग्जैक्टली गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप वेयर द विड्थ ऑफ ईच बार इज 1. कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग. ओके, तो एग्जैक्टली तुम इसको ऐसे सपोज कर सकते हो कि मेरा एक फील्ड है एंड उस फील्ड में मेरी बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स की कुछ कुछ मुझे हाइट गिवन है. ठीक है, आई हैव टू टेल दैट हाउ मच वाटर इज गोइंग टू ट्रैप बिटवीन दोज बिल्डिंग्स. ओके, कितना कितना वाटर उन बिल्डिंग्स के बीच में ट्रैप होने वाला है, एंड ऑल दोज बिल्डिंग्स आर इन अ सिंगल लाइन. ठीक है, जैसा कि तुम्हें इस फिगर में भी दिख रहा होगा डायग्राम में, दैट इज ये जो मेरे ब्लैक बार्स हैं, ये मेरी बिल्डिंग्स हैं, एंड ऑल दीज बिल्डिंग्स आर इन लाइन. ठीक है, एंड जो ये मेरा ब्लूइश सब्सटेंस है दैट इज वाटर. ओके, तो अगर मैं एक इनपुट एग्जांपल की बात करूं जो मुझे प्रॉब्लम में गिवन होगा, तो कुछ ऐसा मिलेगा 0 1 0. ये मेरी बिल्डिंग्स की हाइट है. ठीक है, तो सिंपली चेक करो, फर्स्ट थिंग इज 0, देन 1, देन 0, देन 2. ओके, देन अगेन 1, देन 0, and then again 1, then 3, then 2, then 1, then 2, and up to this much. okay, और इसमें तुम्हें अब यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि कैसे इनके बीच में वाटर ट्रैप हो रहा है. तो तुम्हें एग्जैक्टली यही बताना है कि इनके बीच में कितना वाटर ट्रैप हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल ट्रैपिंग रेन वाटर इज. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछ ली जाती है तुम लोगों से, और ऐसे ही तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट्स में भी आ जाती है. ठीक है, तो exact thing we are going to use in this is prefix and suffix pre-processing. ओके, एंड ये मैंने आप लोग को एक हिंट दिया, प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्री प्रोसेसिंग. यहाँ पे अगर तुम वीडियो पॉज करना चाहो तो पॉज करो, एंड यू कैन थिंक आउट अ सॉल्यूशन बाय दिस हिंट. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द अप्रोच. जस्ट सी कि मेरी दो बिल्डिंग्स के बीच में कितना पानी ट्रैप होने वाला है. ओके, दिस इज द मेन थिंग, और यू कैन सी दैट ऑल द विड्थ्स बिलो इज 1 ईच इज यूनिट लेंथ. ओके, जितनी भी बिल्डिंग्स है सबकी लेंथ यूनिट है. सो व्हाट वी कैन थिंक आउट इज
हम ये थिंक आउट कर सकते हैं कि हर एक यूनिट लेंथ में कितना वाटर ट्रैप होने वाला है। ओके, और हमारे पास टोटल यूनिट लेंथ हैं कितनी एग्जैक्टली, दोज आर n, दैट इज n नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और हर बिल्डिंग की विथ जो है दैट इज 1 यूनिट है। ठीक है, तो हम हर यूनिट में या फिर हर बिल्डिंग में कितना पानी स्टोर होने वाला है वो देख लेते हैं। तो हम हर यूनिट में कितना पानी स्टोर होगा ये देखने के लिए क्या करते हैं, जस्ट इमेजिन मेरी एक ये बिल्डिंग है, ठीक है, और आई एम टॉकिंग अबाउट दिस यूनिट। क्या इस यूनिट में कहीं पे भी तुम्हें वाटर दिख रहा है? ये मेरी एक यूनिट है, इस यूनिट में कहीं पे भी तुम्हें वाटर दिख रहा है? नो, इस यूनिट में कहीं पे भी वाटर नहीं है, इस यूनिट का वाटर 0। सेकेंड यूनिट इज दिस यूनिट, इस यूनिट में वाटर कहाँ दिख रहा है? इस यूनिट में वाटर मुझे ये दिख रहा है। अब ये वाटर की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली ये देखते हैं। ठीक है, अगर मुझे इस यूनिट में वाटर निकालना है तो मुझे चाहिए क्या कि लेफ्ट से इसी यूनिट के, सपोज ये मेरी एक सिंगल यूनिट थी, ठीक है, लेट मी क्लियर दिस आउट वन। सपोज ये मेरी एक सिंगल यूनिट थी, इस यूनिट को जितना भी वाटर स्टोर हो रहा होगा, ठीक है, उसको लेफ्ट से कोई एक चीज़ ट्रैप कर रही होगी और एक चीज़ कोई राइट से ट्रैप कर रही होगी। ठीक है, जब भी उन दोनों ट्रैपिंग बिल्डिंग्स के बीच में कहीं पे तुम्हारा इस यूनिट में वाटर स्टोर हो रहा होगा, दिस इज द थिंग। ठीक है, अब इस यूनिट में लेफ्ट से कोई चीज़ ट्रैप कर रही होगी और राइट से कोई चीज़ ट्रैप कर रही होगी। ठीक है, तो मैं उसका थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ और फिर समझ में आएगा। सपोज ये मेरी एक बिल्डिंग थी और ये मेरा कोई एक चीज़ था जो मुझे लेफ्ट से ट्रैप कर रहा था इस वाटर को। ठीक है, और एक लाइन थी जो मेरी राइट से ट्रैप कर रही थी वाटर को। ठीक है, तो अब इस यूनिट में मेरा कितना वाटर स्टोर होगा, जस्ट इमेजिन अबाउट दिस। पानी मेरा कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक। ओके, एंड इसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली ये जो इसकी हाइट है मेरी, दोनों मुझे लेफ्ट और राइट ट्रैप करने वाले सब्सटेंस की या ट्रैप करने वाली लाइन की हाइट पता है। ठीक है, सपोज इसकी हाइट है m1 और इसकी हाइट है m2। ठीक है, तो मैं इस वाटर की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, आई नो दिस थिंग इज यूनिट, तो आई कैन सिंपली कैलकुलेट द वाटर एज मिनिमम ऑफ m1 एंड m2। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 1, इतना पानी मेरे इन दोनों लाइंस के बीच में ट्रैप हो रहा होगा। वाई आई टुक मिनिमम, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो पानी है वो मिनिमम ऑफ m1 और m2 के बीच में ही ट्रैप होगा। ठीक है, ये पानी क्या यहाँ तक भर सकता है? नहीं, क्योंकि जो मेरा एक लाइन बॉन्ड थी जो ट्रैप कर रही थी वो वाटर, वो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, दैट इज m1। ठीक है, दैट्स व्हाई आई टुक मिनिमम ऑफ m1 एंड m2 फ्रॉम हियर। और मुझे ये पता चल गया कि इस यूनिट में मेरा कितना पानी स्टोर हो रहा है। ठीक है, इन द सेम वे आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वाटर इन ऑल द यूनिट्स, और यू कैन से वाटर इन ऑल द बिल्डिंग्स अप टिल हेयर। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ तुम लोगों को यहाँ पे दिख रही होगी, अगर नहीं दिख रही तो तुम लोग ऐसे देख सकते हो, दिस इज़ द बिल्डिंग थिंग। ठीक है, और जो ब्लैक वाली चीज़ है वो तुम्हारी बिल्डिंग्स हैं और ये जो ब्लू वाली चीज़ है ये वाटर है तुम्हारा। ठीक है, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इसको सपोज ये था मेरा पूरा होल स्ट्रक्चर। ठीक, अब मैं बोल रहा था कि ये मेरी कुछ बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ठीक, अब मैं इस यूनिट के लिए निकाल रहा हूँ कि इस यूनिट में कितना वाटर ट्रैप होगा। अब मैंने कुछ एक एग्जांपल दिया था कि इसकी एक लेफ्ट से लाइन होगी जो इसको ट्रैप कर रही होगी और एक राइट से लाइन होगी जो इसको ट्रैप कर रही होगी। ठीक है, अब मेन चीज़ तुम्हें क्या इमेजिन करनी है, क्या ये जस्ट ये जो लेफ्ट लाइन है जो यहाँ पे वाटर ट्रैप कर रही है, क्या ये लेफ्ट लाइन जस्ट यही वाली हो सकती है, या वो लेफ्ट लाइन कहीं यहाँ पे या यहाँ पे भी हो सकती है? जस्ट इमेजिन अबाउट दिस। एक चीज़ देखो कि अगर मैंने ये जो लेफ़्ट लाइन थी, ठीक है, अगर मैंने ये जो लेफ़्ट लाइन थी वो यहाँ पे बनाई, ठीक है, और इसके बीच में कई सारी छोटी छोटी लाइंस भी हैं। ठीक, और यहाँ पे जो राइट लाइन थी, मैं इस वाली यूनिट में वाटर ट्रैप निकालने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी लाइंस हैं, बट और यहाँ पे और छोटी लाइन है। ठीक, बट यहाँ पे जो राइट लाइन थी वो इतनी बड़ी थी एंड अगेन ये लाइन इतनी बड़ी थी। तो अब वाटर ट्रैप इस यूनिट में सिंपली कितना होगा ये देखो। यहाँ से जो मेरी लेफ्ट बैरियर है जो वाटर ट्रैप करने वाला है, अगर मैं इस यूनिट में पानी भरूँ तो वो देखना, इमेजिन करना कि कैसे भरता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मेरा पानी जो है वो यहाँ तक आएगा। अगर मैं इन दोनों के बीच में पूरा पानी भरूँ,
ठीक है, ये पानी कुछ ऐसा भरेगा, हाँ भरेगा, तो यहाँ का जो इस यूनिट का वाटर है वो कहाँ तक आ जाएगा, सिंपली यहाँ तक, ये पूरा पानी जो है वो यहाँ तक भर जाएगा इस सिंगल यूनिट में। तो यहाँ से ये चीज़ तुम्हें क्या समझ में आई, दैट ये जो तुम्हारी ट्रैपिंग लाइन है, दैट इज लेफ्ट ट्रैपिंग लाइन एंड राइट ट्रैपिंग लाइन, वो ज़रूरी नहीं है कि जस्ट इसके लेफ्ट में हो। ओके, ये जो राइट ट्रैपिंग लाइन और लेफ्ट ट्रैपिंग लाइन है, दैट इज दिस और दिस, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हो। तो एग्जैक्टली इस यूनिट में कितना पानी स्टोर होने वाला है, उसके लेफ्ट में जो भी मैक्सिमम लाइन है, ठीक है, लेफ्ट में मैक्सिमम लाइन कौन सी है, सबसे बड़ी लाइन ये वाली है, तो ओके, दिस विल बी माई M1 फॉर करेंट यूनिट। मुझे अगर इस यूनिट के लिए वाटर स्टोरेज निकालना है तो मेरी जो लेफ्ट ट्रैपिंग लाइन होगी, जो वाटर को ट्रैप करने वाली है इस यूनिट में, वो क्या होगी, इसके लेफ्ट में जितनी भी मैक्सिमम लाइन्स हैं उन सबका मैक्सिमम, ठीक है। और अगर राइट ट्रैपिंग लाइन निकालनी है तो इसके राइट में जितनी भी लाइन्स हैं उन सबका मैक्सिमम। ये चीज़ मुझे देगी M2, ये चीज़ मुझे देगी M1, ठीक है। नाउ आई हैव टू वैल्यूज़। अगर मुझे इस यूनिट के लिए वाटर ट्रैप निकालना है कि इस यूनिट में कितना वाटर ट्रैप हुआ, आई विल सिंपली मार्क इट एज मिनिमम ऑफ M1 मल्टीप्लाई M2, मिनिमम ऑफ M1 एंड M2 सिंपली, ठीक है। अब मेरा इस यूनिट में वाटर ट्रैप मुझे पता चल गया कैसे निकालना है। इस यूनिट में इन सब का टोटल सम अगर मैं निकाल लूँगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, पूरा का पूरा वाटर ट्रैप्ड बिटवीन दीज बिल्डिंग्स, ठीक है। तो मुझे पूरी यूनिट्स में, दैट इज टोटल n यूनिट्स में सेम चीज़ करनी है। मुझे एग्जैक्टली क्या करना है, हर यूनिट में जाना है, उसके लेफ्ट की मैक्सिमम लाइन निकालनी है एंड दैट थिंग विल बी M1, उसके राइट की मैक्सिमम ट्रैपिंग लाइन निकालनी है, दैट विल बी M2, एंड आफ्टर दैट करंट यूनिट के लिए मेरा आंसर कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ M1 एंड M2 विल बी द ट्रैप्ड वाटर फॉर करंट सिंगल यूनिट, ठीक है, फाइन। अब ये जो मैक्सिमम लाइन्स हैं ये एग्जैक्टली हैं क्या, ये है मेरी बिल्डिंग की हाइट जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या क्वेश्चन बहुत इजी सा हो गया, सिंपली। अब मेन चीज़, व्हाई आई हैव गिवन यू द हिंट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज प्रीफिक्स एंड सफिक्स प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। तो वो इसलिए था, सपोज मैं हर एक यूनिट में जाने वाला हूँ, ठीक है, और उसका फिर रेन वाटर ट्रैप निकालने वाला हूँ हर एक यूनिट का। अब उस यूनिट का रेन वाटर ट्रैप निकालने के लिए मुझे चाहिए उसके लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू और उसके राइट की मैक्सिमम वैल्यू, और ये चीज़ मैंने आपको DSA में प्रीफिक्स और सफिक्स प्री प्रोसेसिंग ऑलरेडी बताया है। अगर मुझे O ऑफ 1 में उसके लेफ्ट और राइट की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, सिंपली अगर मैं प्रीफिक्स प्री प्रोसेसिंग कर लूँ तो मैं हर इंडेक्स के लिए, ith इंडेक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ I इंडेक्स के लेफ्ट में, ठीक है। और अगर इसी तरह सफिक्स प्री प्रोसेसिंग कर लूँ तो मैं I इंडेक्स के राइट में मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक। तो मुझे O ऑफ 1 में M1 और M2 की वैल्यू मिल जाएगी हर एक सिंगल यूनिट के लिए। एंड मैं अपना इस क्वेश्चन को सॉल्व ट्रैपिंग रेन वाटर को कितने में कर सकता हूँ, O ऑफ n में सिंपली, फाइन, क्योंकि मुझे हर एक यूनिट में इटरेट करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द फंक्शन और सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट इन द क्वेश्चन यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल एक्सप्लेन यू इन ब्रीफ अगेन, ठीक है। तो ये फंक्शन है तुम्हारा सिंपल सा, जहाँ पे एक वेक्टर ऑफ हाइट्स गिवन है, तुम्हें हर एक बिल्डिंग की हाइट गिवन है, मैंने n ले लिया, हाइट डॉट साइज टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जिसका मुझे ट्रैपिंग रेन वाटर निकालना है। अब n इज इक्वल्स टू 0 है तो ऑब्वियसली मेरी एक भी यूनिट नहीं है जहाँ पे वाटर स्टोर हो रहा होगा, और सिंपली आई विल रिटर्न 0। फिर मैंने दो एरेज बनाई, दैट इज लेफ्ट एंड राइट, जिसमें मैं लेफ्ट में स्टोर करने वाला हूँ लेफ्ट I इंडेक्स के, दैट इज करंट यूनिट के लेफ्ट की मैक्सिमम वैल्यू और करंट यूनिट के राइट की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से प्री वाटर, यहाँ जिसमें मैं अपना आंसर स्टोर करूँगा टोटल वाटर, ट्रैप्ड वाटर। फिर मैंने लेफ्ट ऑफ 0 को हाइट ऑफ 0 से इनिशलाइज किया और 1 इंडेक्स से n तक चला, और मैंने सिंपली लेफ्ट ऑफ I को कैसे कर दिया, मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ I माइनस 1, दैट इज अभी तक का मुझे जो मैक्सिमम मिला है, एंड करेंट हाइट जो मेरी करेंट हाइट है बिल्डिंग की। सिंपली मैंने यहाँ पे देखो सिंपली क्या किया, इस वाले लूप में मैंने सफिक्स एरे प्री प्रोसेस कर ली, सफिक्स एरे, ठीक है। एंड एट द एंड मुझे हर यूनिट के लिए, दैट इज फ्रॉम 0 टू n-1 सारे इंडेक्सेस के लिए मुझे क्या निकालना है, सिंपली करंट यूनिट में ट्रैप्ड वाटर। आई विल सिंपली ऐड मिनिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ I एंड राइट ऑफ I माइनस हाइट ऑफ I, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे हुई क्यों, ये चीज़ और देख लो तुम लोग। सपोज
मैं इस यूनिट में वाटर निकाल रहा था, ठीक है, और इस यूनिट की जगह तुम ये वाली यूनिट देखो, मैं इस यूनिट में वाटर निकाल रहा था, तो मुझे ये पता चल गया कि इस यूनिट में टोटल वाटर ऊपर से नीचे तक कितना आ सकता है, ठीक है, ये पता चल गया। अब लेकिन ये टोटल वाटर तो है नहीं इन द बिलो सेक्शन, इतनी तो मेरी ये बिल्डिंग ही है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पानी तो होगा नहीं यहाँ पे ट्रैप्ड थिंग, यहाँ पे थोड़ी सी बिल्डिंग भी आएगी, तो उस बिल्डिंग की वैल्यू मुझे क्या करनी पड़ेगी, माइनस। सो अगर मैं करंट यूनिट में वाटर ट्रैप निकालने वाला हूँ, आई विल सिंपली डू मिनिमम ऑफ m1 m2 माइनस हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो मेरी करंट हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, जो करंट यूनिट में आ रही है, ठीक है, h ऑफ i। तो ये चीज़ मैंने अभी तक इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि मैं करंट यूनिट में सिंपली पानी की बात कर रहा था, ठीक है। अब वहाँ पे एक बिल्डिंग भी है, तो उस बिल्डिंग की हाइट हटा दो उससे, सिंपल सी चीज़ है। दैट्स वाई मिनिमम ऑफ लेफ्ट आई राइट आई माइनस हाइट ऑफ आई। लेफ्ट बैरियर जो वाटर ट्रैप करने वाला है, राइट बैरियर उसका मिनिमम मुझे उस करंट यूनिट में जितना पानी आ सकता है, माइनस आई विल सब्सट्रैक्ट द हाइट जो मेरी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, एंड एट द एंड आई विल रिटर्न टोटल वाटर ट्रैप्ड बिटवीन दीज बिल्डिंग्स। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you still have any doubt, you can ask me in comment section again. I will explain you in brief again. And if you haven't visited Newton School yet, just go and visit newtonschool.co and check their pay after placement program, under which they are providing you trainings for 6 months, and after that they will also get you placed in different companies, and you have to pay only after your placement, and minimum CTC they are providing you is of 5 lakh. And second thing, if you haven't checked Launchpad initiative, just go and check their Launchpad initiative. And at the end, if you haven't subscribed this YouTube channel, just go and subscribe this Code Kitchen Newton School YouTube channel. Thank you guys for watching.